Hello, dear learners. Welcome to our YouTube channel, Wireless Tutor. This is the third lecture of the complete Polity series. We are going to discuss about the fundamental rights today. So, without wasting any more time, let's get started. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାର୍ଟ 3 ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 12 to 35 ଏ ଭିତରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାକୁ କହୁଛେ। ଯଦି ଦେଖିବା ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା କାହିଁକି କହୁଛୁ, ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚାର୍ଟର বা ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସିଟିଜେନକୁ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଆର ବି ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଜାଣିଦବା। କୋଉଠୁ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଆସିଲା? ୟୁରୋପର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭି। ତାଙ୍କର ସିଟିଜେନ ମାନେ ଥରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ସ ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଯଦି ରହିବୁ ଆମକୁ କିଛି ରାଇଟ୍ସ ଦରକାର। ରାଇଟ୍ସ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆମର ଡିଗ୍ନିଟି ହାମ୍ପର ହବ। ତେଣୁ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲିଖିତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନରେ କୋଉ କୋଉ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡାକ ମିଳିବ ସେଇଟା ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ରିଟର୍ନ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଲେ। ଯୋଉ ରିଟର୍ନ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ। এই ଯୋଉ ରିଟର୍ନ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡାକୁ କୁହାହେଲା ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା। ଏଇଟା 1215 ଏହାକୁ 1215 AD ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡରେ ତିଆରି। ମାଗ୍ନା ମିନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହିଜ ହାଇନେସ୍ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଯୋଉ ରୟାଲ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଡ ପୋଜିସନରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗ୍ନିଫାଇଡ ପର୍ସନ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରୟାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାର୍ଟା ମିନ୍ସ ହଉଛି ଚାର୍ଟର ମିନ୍ସ ରାଇଟ୍। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ତାର ଏମ୍ପରର ବା ସମ୍ରାଟ ତାକୁ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା। ଏଇଟା 1215 AD ରେ ୟୁରୋପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୟୁରୋପର ସ୍ପେଶାଲି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଆମେରିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଆମ ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡିକ ନୁହଁ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ରୁ ଏଟା ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଆଡପ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ଦ ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ରୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ୟୁଏସ୍ ର ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଦେଖିବା ତାର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେରିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଟାଇମରେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ କରାଗଲା ଯେ 13 ଆମେରିକାନ କଲୋନିଜ ଥିଲା, 13ଟା ଆମେରିକାନ କଲୋନିଜ ଥିଲା which were dominated by Britain। ତାକୁ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଟାଇମରେ ତମେ ଜାଣିଥିବେ ତାର ଲିଡରସିପ ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆମେରିକାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ କିଏ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଥୋମାସ ଜାଫରସନ। ଯୋଉ ଥୋମାସ ଜାଫରସନ ଥିଲେ ସିଏ ଆମେରିକାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଯେହେତୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଫାଦର ଅଫ ଦ ଆମେରିକାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଥୋମାସ ଜାଫରସନ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ ଯେ ଥୋମାସ ଜାଫରସନ ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଥିଲା ସେଥିରେ ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା, introduced by जेम्स मेडिसन। जो जेम्स मेडिसन ଥିଲେ, जेम्स मेडिसन को द्वारा एटा बिल ऑफ राइट्स को इंट्रोड्यूस कराहला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बिल ऑफ राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करा है, किंतु दैट इज सिमिलर टू मैग्ना कार्टा।
So that is called Magna Carta of Indian Constitution. But this was adopted from the US Bill of Rights. Confusion हेबा आवश्यक नहीं. जदि पचरा from which country the fundamental rights have been adopted, ताला आंसर आबो US आबो. किंतु जब देखिया आबो जदि मैग्ना आको कोन कहउछनी हम जदि कहबा ताले आको हम मैग्ना कार्टा कहउछ. मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होती पार्ट 3. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 3 टाको भाग 3 टाको आमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना मैग्ना कार्टा कहउछ. आई होप कि समस्त क्लियर है. नेक्स्ट देखिए जब देखिए हमें फंडामेंटल राइट्स से गुडी कहीं कहले कहीं फंडामेंटल राइट्स कहले फंडामेंटल राइट्स कहले इन ए सेंस दैट एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर सपोज लोकसभा बा राज्यसभा पार्लियामेंट हो बा लेजिस्लेटिव असेंबली हो सेमान द्वारा जदि कौनसी गोटे लॉ फॉर्म कराई आउ सेगुड़ा जदि हमर फंडामेंटल राइट को कंट्राडिक्ट करूछि दैट अपोजेस और violates the fundamental rights then that law will be declared as null or void. ताल ताको हमें null बा void भावे डिक्लेयर करिया. ताको null बा void भावे हमें डिक्लेयर करिया. ताको कहबा अनकन्स्टिट्यूशनल ताको एक्सेप्ट करा जिवो नाही. तनो ये सेति में हमर कहल ताको फंडामेंटल राइट. जदि फंडामेंटल राइट को विरोध करछि अन्य सब जगह लॉ गुडा को हमें void कर दवा बा से गुडा को हमें इलीगल भावे डिक्लेयर कर दवा. से बेला जदि फंडामेंटल राइट गुडा जदि भायोलेट हला तमरो आ कौन सी लीगल प्रोविजन्स रो आश्रय नेबा दरकार नहीं. तुम सीधा सड़क अप्रोच करि परियो एइदर सुप्रीम कोर्ट न होले हाई कोर्ट. तुमर जदि फंडामेंटल राइट भायोलेट हेछि तल तुम सीधा सड़क पहुंच परियो. तल जानि परते एटा केते केते फंडामेंटल बा एटा केते थ्रू सो दैट दिस इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ताहल जे देखियो हमें जदि किंतु आ गोटे जिंस मन रखिया पड़े दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. कहीं एमान इमरजेंसी टाइम रे हमें एगुडा को हमें रेजिस्ट कर परियो बा रेस्ट्रिक्ट करा जाई परियो. कहीं जे देखियो एगुडा को हमें प्रेसिडेंट को पाखर पावर अछि. प्रेसिडेंट चाहिले ए फंडामेंटल राइट गुडा को से रेस्ट्रिक्ट कर परियो. किंतु को समय रे ड्यूरिंग इमरजेंसी जदि इमरजेंसी वाला गोटे एग्जांपल नै जा तला हमर कोविड-19 पैंडेमिक चलथिला. सेही समय रे कोन हेतिला जे हम पाखर तो फ्रीडम अछि. Freedom to move from one part to another part. This is our fundamental rights. But हमको एलाउ करा होनथिला जे गोटे जगह आ गोटे जगह दिया पे. काहे एलाउ करा होनथिला कारण इमरजेंसी टाइम रे हमर ए फंडामेंटल राइट ए फ्रीडम थारु बेसी इंपोर्टेंट थला टू स्टे इन होम. हम घरे रहयाटा बेसी इंपोर्टेंट थला. तनुकरी हमर सही समय रे फंडामेंटल राइट रो जेतिकी नेसेसिटी थला हम घरे रहयार बेसी आवश्यक. तनुकरी हमको एलाउ करा होनथिला. सेमिति कौन सी गोटे सपोज भाभी दियो तुम पाखरे किछि तुम गोटे आर्मड फोर्स रे जॉइन करछो तुम आर्मी रे अछो तुम देशर किछि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को तुम जानिछो ताहले यू कैन नॉट एक्सपोज दैट इंफॉर्मेशन. तुम से इंफॉर्मेशन मध्ये एक्सपोज कर परियो नै. काहे कि दैट इज अगेंस्ट द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री. हम कंट्री रो जेहेतु सेफ्टी और इंटीग्रिटी ही हम पर होइजो तन तुम पाखरे फ्रीडम ऑफ स्पीच थिले मध्ये देशर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को तमे एक्सपोज करि परियो नाही. तनु एमिति किछि स्पेशल केसेस अछि जोडी तमरो जोडी कि फंडामेंटल राइट गुडे को लागू हे नाही. नेक्स्ट देखियो फंडामेंटल राइट्स गुडा को हमें ताको हमें डिक्लेयर कराई छि मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एटा हम जानले. नेक्स्ट देखियो द कांसेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स. एटा को मध्ये हम जानले. The fundamental rights are named because they are guaranteed and protected by the constitution. हमर जो constitution होचे हम कंट्री सबुठारो सॉक्रेट बुक सबुठारो पवित्र ग्रंथ हम कंट्री पई कोटा थाए से होची हमर constitution. तापर हमर जो रिलीजन बेसिस रे जार जोटा हे परियो मुस्लिम मान कुरान हिंदू मानकर कोन हमर हिंदू मानकर गीता भगवत गीता नै बाइबल होची क्रिश्चियन मानकर. तेणु किंतु बेसिक जो जोटे हम कहबा प्राइमरी सॉक्रेट बुक होची हमर कॉन्स्टिट्यूशन. तेणुकरी एटा जेहेतु से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड हिची तेणु ताको हम कोन कहबा एटा कहबा फंडामेंटल. तेणुकरी ताको हम नेमिंग कर देले. ता सहित ए जो फंडामेंटल राइट गुडा काहे मध्ये दरकार हम जाने फंडामेंटल राइट गुडा जे देखिया ऑल राउंड डेवलपमेंट कौन सी गोटे लोक डिग्निटी सहित डिग्निटी माने आत्मसम्मान
कौन लोक डिग्निटी आत्मसम्मान सहित बंचिया हेले ताकू फंडामेंटल राइट निहाती दरकार सो दिस इज ए बेसिक नेसेसिटी लोक मानकर जे से भल भाव बंचिया दरकार एटा मटेरियल नुह एटा मेंटल इंटेलेक्चुअल मोराल स्पिरिचुअल यही डेवलपमेंट सब करने डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स दरकार तेणु ताको आम फंडामेंटल राइट्स कह ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन आमर 7 फंडामेंटल राइट्स थिला किंतु वर्तमान जो देखियो आमर वर्तमान आमर फंडामेंटल राइट्स संख्या होची 6 कहीं आमर जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला से जो राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 31 जो थिला आमर सेटा राइट टू प्रॉपर्टी सेटा फंडामेंटल राइट रु ताकू रिप्लेस कराला ताकू रिफिल कराला ताकू वर्तमान केवल गोटे लीगल राइट भाबे ताकू केवल रखाई सी वर्तमान दैट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट दैट इज ए लीगल राइट you can file or you can fight that case in the court but that is not a fundamental right ताहले आपको जे देखा आपको केते बेले रिपील कराला अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमर 44तम संविधान संशोधन एक्ट अनुसार जो 1978 रो ताकू रिपील करा हला नेक्स्ट देखियो द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जेमिति हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रीवियस वीडियो रे हम पढितले वर्तमान देखिबा जो फंडामेंटल राइट्स रो फीचर कोन दीज आर नॉट एब्सोल्यूट काहे कि कहितले वर्तमान पूर्वरु डिस्कशन करथिले हमें जे गुडा एब्सोल्यूट नै काहे कि दे कैन बी curtailed during को समय इमरजेंसी समान को इमरजेंसी टाइम रे हमें सस्पेंड करिवा फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी तो those can be justiciable काहे कि तमर जदी फंडामेंटल राइट वायोलेट यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स तुम अप्रोच करि पारे ताल तुमको पर सुप्रीम कोर्ट कोन करिए तुमको प्रोटेक्शन देबे सो दैट दोस आर जस्टिसेबल सो दैट इज अगेंस्ट द स्टेट एटा जिंस बुझिया पड़ो ए दीटा जिंस कंबाइन जिंसटा सेम एका जानिबा हम गोटे साइड रे छन हमर कोन गोटे छ हमर फंडामेंटल राइट्स गुडा जोडी के फंडामेंटल राइट्स गोटे साइड रे हमर सिटीजन गोटे साइड रे हमर सिटीजन मान रहले आ गोटे साइड रे हमर रहले स्टेट एक्चुअली स्टेट पाखरे तार आर्म्ड फोर्सेस अछि पुलिस अछि तन स्टेट चाहिले कोन करि पारे कोन से सिटीजन को से जेल ले भर्ती करि पारे बा ताकू सप्रेस करि पारे डिस्क्रिमिनेट करि पारे तन स्टेट पाखरे पावर अछि बट से जो पावर ता तार रेस्ट्रिक्टेड हिजी हमर फंडामेंटल राइट ता माने द फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट ये गोटे बैरियर माने गोटे प्रतिबंधक ये सिटीजन माने को जहाँ पर आर्बिट्रारी निजर पावर अच्छी स्टेट रो से जागु चाहिए इम्प्रिजन कर दो ताकू जेल भर्ती कर दो हमरो हमको से कहबो जे तू कथा कहि परिबनु कोन जगह को बुली परिबनु तू कौन सी रिलीजन को प्रैक्टिस करि परनु ए जिंस गुडा का स्टेट करि परिबो नाही बिकॉज़ वी हैव फंडामेंटल राइट्स तो ये एक्चुअली कहार अगेंस्ट रहला दैट इज अगेंस्ट द स्टेट देन ये होची अगेंस्ट द स्टेट और कहा फेवर रे इन द फेवर ऑफ द सिटीजन सिटीजन मान को फेवर रे बट दैट इज अगेंस्ट द स्टेट then negative kahi nature se kahuchi state cannot do this state cannot force us to practice our religious customs आम निजर religious custom को practice करे state हमको बंद कर परियो नहीं तेनु that is negative nature नहीं अब से there is no need of any legal way देखिया ए जिंसटा कोन सपोज लीगल वे कोन सपोज देखिया हमें किसी देखिए तुम ड्राइविंग करछ जे ड्राइविंग करछ ताले ड्राइविंग पे किसी कोड ऑफ कंडक्ट है कोड है से किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो अनुसार तुम ड्राइविंग करियो का जेमिति तुम ड्राइविंग करछ किसी रेकलेसली हेलमेट यूज करे जहा भी कर ता माने ए जिंस करिया पे ता पछरे किसी लीगल प्रोविजंस अछि किसी लॉ अछि ता किंतु फंडामेंटल राइट पछरे कोनसी लॉ नाही बिकॉज़ दैट इज फंडामेंटल इन सेंस कारण ता पर ही ताकू फॉलो करी अन्य लॉ तयारी हबो ना कि लॉ गुडा को नै कि फंडामेंटल राइट तेरो तेनु करी ये एगुडा को बेसिक जिंस माने एगुडा को स्टार्टिंग रे ए जिंस हमु दरकार फंडामेंटल राइट को नै कि हमर अन्य जिंस गुडा तयारी हबो तेनु करी फंडामेंटल राइट पे कोन से लीगल बैक दरकार दोस कैन बी एमेंडेबल एगुडा को कैन बी करेक्टेड एमान को करेक्ट कराई पारे जदी टाइम टू टाइम किछि जदी हमर नेसेसिटी दरकार पड़ला ताले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होची से संविधान संशोधन अनुसार गुडे मध्ये हम चेंज कर देबे नेक्स्ट देखिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे जो पार्ट 3 रे
आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 पर्यंत अच्छी से सब आर्टिकल गुड़ाक आम क्लासीफाई कर देचे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 एगुड़िक जो 6टा बेसिक फंडामेंटल राइट्स से गुड़ाक अंडर आसती ना जदि आर्टिकल 12 देखिए ये डेफिनेशन कौन स्टेट कौन आम नेक्स्ट स्लाइड गुड़ाक प्रॉपर्ली डिफाइन करिया जे स्टेट कौन स्टेट गुड़ाक पार्ट किए हम किंतु बर्तमान खाली ओवरऑल देखियो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 13 कहूँ जो लॉ गुड़ाक इनकंसिस्टेंट जो गुड़ाक फंडामेंटल राइट को अपोज कर सेगुड़िक भॉइड बा सेगुड़िक इलीगल बा अनकन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14 रु 18 भीतर राइट टू इक्वालिटी रही समानता अधिकार राइट आर्टिकल 19 रु 22 भीतर आमर राइट टू फ्रीडम रही स्वाधीनता अधिकार सो आर्टिकल 23 रु 24 ए भीतर राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आमको कहीं भी शोषण करें शोषण विरोध अधिकार आर्टिकल 25 रु 28 भीतर राइट ऑफ रिलीजन जेकोसी रिलीजन आम प्रैक्टिस करिबा धर्मगत अधिकार सो आर्टिकल 29 रु 30 भीतर आमर रही एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स जोटा कि आम कह शिक्षागत और सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल 32 रे आमर कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज गुड़ाक अच्छे संविधानिक प्रतिकार अधिकार जदि तुम ये जो उपरोक्त फंडामेंटल राइट गुड़ा भायोलेट है देन यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस आर्टिकल ये आर्टिकल अनुसार एडुक आम कह बुझल नहीं नेक्स्ट देखा आर्टिकल 12 कौन कह आर्टिकल 12 टा डिफाइन कर एक्चुअली स्टेट कौन जदि आम देखा स्टेट कौन एक्चुअली स्टेट कौन सी डिफाइन कर आर्टिकल नंबर 12 स्टेट रो डेफिनेशन से दूची आ स्टेट काउ काउ कहूची ए जिंस गुड़ा तार फॉलोइंग जिंस गुड़ा द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली ये यूनियन ऑफ इंडिया बा यूनियन गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट आ तार पार्लियामेंट जोटा पार्लियामेंट को आम कौन कहबा सी मध्य पार्ट स्टेट रो पार्ट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट जो कौन से रेस्पेक्टिव स्टेट गुड़ाकर जो गवर्नमेंट गुड़िक लेजिस्लेटर जो विधानसभा गुड़िक राज्य सरकार गुड़िक से गुड़िक स्टेट अंडर आसे सहित स्टाच्यूटरी और नॉन स्टाच्यूटरी अथॉरिटी गुड़ाक जमी एलआईसी ओएनजीसी एसएआईएल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एगुड़ा सब आसला स्टाच्यूटरी क्या कहबा एक्चुअली जदि कौन से गोटे इंस्टीट्यूशन कन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अच्छी जदि कन्स्टिट्यूशन ही डिक्लेयर करट्यूशन कंट्री दैट इज स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी कौन एक्चुअली पार्लियामेंट द्वारा बा लेजिस्लेचर द्वारा कौन से बिल पास करके जिते बिल पास करी कौन से इंस्टीट्यूशन फॉर्म कराए नॉन स्टैट्यूटरी कहबा देखिए ऑल लोकल अथॉरिटीज कौन लोकल अथॉरिटीज जमी अर्बन एरिया म्युनिसिपालिटी एनएसी नोटिफाइड एरिया काउंसिल सहित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब जाक आसला लोकल बॉडी गुड़ा पंचायत पंचायत समिति सहित जिला परिषद ये सब जाक आम कह लोकल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गुड़ाक इम्प्रूवमेंट बोर्ड गुड़ाक ये सब जाक जिन स्टेट अंडर आसे गोटे क्वेश्चन आसे जुडिशियरी आमर कन्स्टिट्यूशन सॉरी आमर स्टेट अंडर आसे कि नहीं जदि देखा जदि जुडिशियरी किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर जुडिशियल फंक्शन जदि आम देखा दैट कम्स अंडर द स्टेट बिकॉज दैट इज ए पार्टी गोटे पार्टी जदि किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर नॉन जुडिशियल कर दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेट आर्टिकल 13 कौन कहूँ जदि कौन से गोटे लॉ जदि इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ये जो 6टा फंडामेंटल राइट दिला से जदि कौन से गोटे आर्टिकल को भायोलेट करिवो ताहाले ताको आमे कहबा से भॉइड बता गोटे नल भाबे डिक्लेयर करिया दैट इज इलीगल हम डिक्लेयर कर दो ताले आमे को लॉ गुडा को आमे इलीगल भाबे डिक्लेयर करि परिया ताहले से गुडा जो देखियो आमे परमानेंट लॉस गुडा जदि पार्लियामेंट द्वारा किछि भी लॉ परमानेंट लॉ गुडा को से फॉर्म करछि बट दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स देन से गुडा मध्ये आमे अवॉइड करि परिया टेम्पोरारी लॉ गुडा जो टेम्पोरारी लॉ गुडा साधारणतः ऑर्डिनेंस गुडा साधारणतः प्रेसिडेंट को द्वारा कोन कराय थे प्रेसिडेंट बा स्टेट रो गवर्नर को द्वारा कोन कराय थे सेटा को इश्यू कराय थे सेही लॉ गुडा को जदि फंडामेंटल राइट को विरोध कले ताले से गुडा मध्ये इनवैलिड कराय स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट गुडा जमी आम पढ़ले स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट से द्वारा जब किसी ऑर्डर पास कराई से द्वारा किसी बाय लॉ दिखाई रूल्स किसी दिखाई रेगुलेशन किसी नोटिफिकेशन पब्लिश कराई जदि से गुडा एगेंस्ट फंडामेंटल राइट से गुडी आम
void बा null भाबे declare करिया नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस लॉ गुड़ा जेମିତି ଆମେ पर्सनल लॉ गुड़ा गुड़ा मुस्लिम लॉ गुड़ा शरिया लॉ आ हिंदू हिंदू लॉ गुड़ा हिंदू हिंदू ट्रेडिशन गुड़ा सेगुड़ा जदि हमर फंडामेंटल राइट को जदि अपोज करछन सेगुडी को मध्ये हमें इनवैलिड भाबे डिक्लेयर करिया जेମିତି हम जदि देखिया ट्रिपल तलाक जो ट्रिपल तलाक थिला ये थिला मुस्लिम लॉ बोर्ड अंडर रे से कोन थिला मुस्लिम मानकर जो आर्टिकल 14 और 15 को कोन करछि से जोटा कि हमर अपोज करछि तेन करी ताकू हमर इनवैलिड भाबे डिक्लेयर करा गला देखिए राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 14 रु 18 भीतर अछि देखिए आर्टिकल 14 says that equality before the law any person सब जगह लोक कौन से सेमानर कास्ट जेंडर रिलीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट से माने समस्त लॉ अगर समस्त समान से जे कौन से लोक होंतु आईन समस्त में समान इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ए दिटा अलग अलग जिंस ये एक्चुअली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दैट इज इन द पॉजिटिव सेंस एंड दिस इज इन द नेगेटिव सेंस नेक्स्ट देखो आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कौन से लोक को आम डिस्क्रिमिनेट करिया ना क्या लोक को अत्याचार करिया नहीं कौन जिनस को आम मार्जिनालाइज करें कौन से लोक को आम एक्सक्लूड करें कौन जिनस जस्ट बिकज तार रिलीजन अलग तार रेस अलग कास्ट अलग सेक्स अलग प्लेस ऑफ बर्थ अलग ये सब जगह अलग तेणुक कौन सी जगह डिस्क्रिमिनेट करें ये जिनस को प्रोहिबिट कर आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल नंबर 16 कौन कहूँ आर्टिकल नंबर 16 says that equality of opportunity for all सब लोगों ପାଇଁ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र रे समस्त ପାଇଁ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहे ताले मन रे क्वेश्चन आछे जे एससी एसटी मानु काई रिजर्वेशन दियौछि देखो इक्वालिटी रो अर्थ जदि हम देखा इक्वालिटी रो अर्थ नु जे समस्त को केवल समान करिया जेहेतु ए माने बैकवर्ड कम्युनिटी गुडा backward they are backward in education they are backward in their economic conditions so that seman को मेन स्ट्रीम को आनिया पई सेमन किछि स्पेशल प्रोविजंस देबा पई गवर्नमेंट पखरे पावर अछि बा स्टेट को पावर दिया आइछि जे सेमाने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो रखिबे किंतु सेमान को सेमाने किछि एमिति किछि मध्ये फेस शो करिए जो टुवर्ड्स द बैकवर्ड कम्युनिटी सो दैट दे कैन बी एंगेज्ड इन द मेन स्ट्रीम नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 एक्चुअली अनटचेबिलिटी जोटा कि अस्पृश्यता कहते हैं अस्पृश्यता ताकू निवारण करने पाई आमर आर्टिकल 17 आसला जो छुआ छुआ भेदभाव टेम्पल गुड़ाक अनटचेबिलिटी थिला जोटे बैकवर्ड कम्युनिटी लोक मानक एंटर करा होउतला किंतु वर्तमान तो से जिंस सब नाही दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 को होजे एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स आगुर सो टाइटल्स राजा अधिराज महाराजा ना नहीं ये सब जिन जो थिला ये टाइटल गुडा को सब एबोलिश करा हेगला केवल मिलिटरी क्षेत्र रे और एकेडमी क्षेत्र रे केवल टाइटल्स रहइबो आउ सब क्षेत्र रो हमर टाइटल्स गुडा को पटाइबो ये थिला एतिक हमर राइट टू इक्वालिटी अंडर जो पांचटा आर्टिकल आर्टिकल 14 को इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 15 को प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 16 होची अबाउट अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी 17 होची प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 18 होची एबोलिशन टाइटल्स नेक्स्ट देखा राइट टू फ्रीडम देखिए राइट टू फ्रीडम होची आर्टिकल 19 रो 22 ए भितरे हमरो 19 20 21 22 ए भितरे चारटा रहइबो आर्टिकल देखियो आर्टिकल 19 अंडर रे हमको 6टा फ्रीडम दिया है से 6टा फ्रीडम कोन कोन हमें देखियो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम जहाँ भी चाहिए तुम मन में जहाँ अच्छी स्पीच माध्यम तुम एक्सप्रेस कर कौन सिंबल माध्यम तुम शो कर मुझे जहाँ चाहूँगी कहीपर से हूँ फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम से आर्टिकल 19 अंडर में रहा असेंबली जो देखा असेंबली जो देखिए आम राइट टू फॉर्म असेंबली आम असेंबली सभा समिति कर एसोसिएशन जमी ड्राइवर्स एसोसिएशन जोटा कि हम किसान यूनियन देखुचे फार्मर्स एसोसिएशन से गुड़ा हम फॉर्म कर मूवमेंट कर राइट टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट तार अन्य अर्थर जो देखिए राइट टू प्रोटेस्ट ऑल्सो हो पारे रेसिडेंस देखिए आम कंट्री जेकोसी पार्ट रे हम जाइए निजर होम एस्टाब्लिश करके आम रही पारे किंतु जितेबाला कि देखिए बिफोर 2019 जो आर्टिकल 370 पूर्व जितेबाला आर प्रोविजन था जम्मू एंड काश्मीर तुम केबे भी तुम रेसिडेंस फॉर्म कर
एटा जेतेबेले कि स्क्रैप कराला वर्तमान तुम तुम रेसिडेंस जम्मू एंड काश्मीर तुम करि पारथ किंतु सेटा थिला रेसिडेंस एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर थिला किंतु वर्तमान दैट इज इक्वली अप्लाई टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री तुम जेकोसी प्रोफेशन को चाहिए नहीं पार सपोज तुम गोटे कार्पेंटर फैमिली जन्म हल तमें तुम लाइफ टा जब कार्पेंटर कम ही कर किसी नहीं प्रोफेशन तुम जेकोसी प्रोफेशन को कौन कर एडाप्ट कर नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 20 कौन कहूँ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस ना नहीं तुमको जब कौन कारण वश किसी कन्वेंशन जब रहा तुम किसी अरेस्ट करला एगेंस्ट जो प्रोटेक्शन संबंधी किसी राइट्स गुड़ाक आर्टिकल अंडर 20 रे दिया आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 जो देखा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को प्रोटेक्शन पे हमर राइट्स रो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वाधीनता मिलियो तो सहित जीवन संबंधी हमर जो कौन रहबो सुरक्षा मिलियो तो जीवन सुरक्षा अंडर रे आउ गोटे आर्टिकल को इंक्लूड कराला अंडर आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट एटा आसला 2009 अनुसार जोडी कहला सब लोक माने 6 सब पिला माने 6 टू 14 इयर्स जो मान को बा स्टैंडर्ड 1 रु 8 क्लास पर्यंत समस्त को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा हो एटा होची आर्टिकल 21 ए अंडर रे आपको एथरे गोटे सब आर्टिकल भाबे इंक्लूड करा नेक्स्ट देखिबा आर्टिकल 22 देखा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस किसी केसेस गुड़ा करे हमरो जोटा कि हमरो जो कन्वेंशन जो अरेस्ट करा हो तुमको केमिति अरेस्ट करा ताबे किसी कंडक्ट अछि सेमान को प्रॉपर वारंट सपोज तुम कौन पुलिस आछने अरेस्ट करे तांको वारंट शो करिया पड़ियो डेफिनेटली सेकंड होची 24 आवर्स प्लस का को के भी डिटेंट करिकी थाना भीतर हाजत रखि परियनी नेक्स्ट विद इन 24 आवर्स तुमको लोकल मजिस्ट्रेट को आगे तुमको हाजर कराया पड़े यही सब जगह जिनस आसला आमर किसी किसी जो प्रोटेक्शन किसी अरेस्ट जिनस स्पेशल केसेस ताले ए जिनस गुड़ा था राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 देखा जदि किसी इमरजेंसी लगे प्रथम यहीटा ही तुम कौन हम बंद हो कि दुईटा चलती आर्टिकल 20 और 21 ये दुटा रही सर्वप्रथम यहीटा ही तुम जो फ्रीडम स्पीच यहीटा को तुम आगे स्क्वीज करा ताले मन रख जो 6टा फ्रीडम मिलची 19 में 20 रे प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट कन्वेंशन बा ऑफेंस पई आउ लाइफ संबंधी आउ एजुकेशन ये 21 रे आउ 22 रे होची किछि ग्राउंड किछि स्पेशल केस से तुमको जे अरेस्ट आउ डिटेंशन नो पॉलिसी दिया है नेक्स्ट देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये होची आर्टिकल 23 और 24 रही आर्टिकल 23 देखा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आग समय कौन करा छोट पिला तस्करी करा ये हूँ कौन मनीष व्यवसाय था गोटे जो ह्यूमन ट्राफिकिंग जोटा कि आम कहीपर कौन जो गर्ल चाइल्ड गुड़ाक फिमेल मान किसी ओमेन मान सहित किसी जो चाइल्ड मान एम कौन एक्सपोर्ट करा जो मनीष बिजनेस था यहाँ तेणु से जो ह्यूमन ट्राफिकिंग ये जिनटा को आम प्रोहिबिशन कम्प्लीटली बैन कर अंडर आर्टिकल 23 आ कौन से फोर्स लेबर करें बाध्य कम करें यूज आर्टिकल 23 नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन जो 6 रु जो मन को अंडर 14 इयर्स 14 इयर्स तल पिला कौन सी क्षेत्र भी तुम बड़ बड़ फैक्टरी गुड़ाक होटल गुड़ाक एगुड़ा तुम एंगेज करें जदि तुम एंगेज कर दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस तुम जेल जावाटा थय अंडर आर्टिकल 24 बिकॉज दिस इज ए फंडामेंटल राइट ये दुटा आमर कौन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नेक्स्ट देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से 25 रु 28 आसो चार्टा आसो चारिटा आर्टिकल आर्टिकल 25 कौन कहूँ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन तुम कौन से गोटे रिलीजन को प्रोफेस कर निजे एडप्ट कर प्रैक्टिस कर प्रोपागेट कर सर्कुलेट कर स्प्रेड भी कर दैट इज अंडर आर्टिकल 25 नेक्स्ट आर्टिकल 26 अनुसार फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एफआईआर तुम पाखे राइट्स अच्छी तुम कौन सी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन रिलीजियस एफआईआर गुड़ा तुम मैनेज कर 27 अनुसार कौन कहूँ फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन आग समय जो औरंगजेब समय आम जजिया था जिजिया जिजिया गोटे टैक्स था तुम जदि तुम हिंदुइज्म बा अन्य
रिलीजन गुड़ा तुम जब प्रोफेस कर प्रमोट कर तुमको टैक्स देवाक पड़ो किंतु बर्तमान से जिनस को आम अंडर आर्टिकल 27 अंडर एबोलिश करा तुमको कौन टैक्सेस लगे ना। नेक्स्ट आर्टिकल 28 अनुसार कौन कह फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना नहीं कौन सी गोटे देखिए फ्रीडम तुमको अच्छी कौन सी गोटे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तुम्हें फ्रीडम फ्रॉम देछि अटेंडिंग देछि कौन सी गोटे तुम्हें जदि रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तुम्हें कौन सी तुम्हें धर्म संबंधी प्रचार कर परियो नहीं से जिंस तुमको दिया किंतु तमे पर्टिकुलर जदि तमे किछ मद्रासा देखिया मद्रासा बा हिंदू हिंदू जदि कॉलेज कॉलेज गुडा देखिया से जगह तमे स्पेशल तमर प्रैक्टिस करि पारे ये थिला आर्टिकल 28 अंडर रे चारिटा आर्टिकल देखो प्रथम टर तमे कौन सी रिलीजन को आर्टिकल 25 अंडर रे प्रोफेशन कर पारो प्रैक्टिस कर पारो तो से ताको प्रोपागेट कर पारो 26 अनुसार कोन करियो तुम ताको रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर पारो 27 अनुसार तुम कौन सी टैक्स देबा पड़े प्रमोशन में आउ 28 अनुसार तुम जब कौन पर्टिकुलर रिलीजन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर तुम से प्रैक्टिस कर नो प्रॉब्लम। तब नेक्स्ट देखिए ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देखिए ये 29 आउ 30 दीटा राइट्स अच्छी। आर्टिकल 29 कौन कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी गुड़ा था से आम लैंग्वेज स्क्रिप्ट आउ कल्चर को आम प्रोटेक्ट करा निहाती दरकार अंडर आर्टिकल 29। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 30 कौन कहूँ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जदि माइनॉरिटी मान पाखे जब राइट्स न था से निजर स्कूल खोली पारे निजर कॉलेज खोली पारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोली पारे ताल से कौन हे से कंट्री आस्ते आस्ते कौन हे मार्जिनालाइज आस्ते किसी समय पर जमी कौन पेरिस जब पाकिस्तान कथा देखिए पाकिस्तान में आमर जिते डिविजन समय 18% हिंदू थे बर्तमान के भाई 1% बिलो 1% कहीं निजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुड़ाक खोलिया परमिट दिया कि इंडिया गोटे सेकुलर कंट्री तेणुक इंडिया जो माइनॉरिटीज मानक कौन दिया राइट दे निजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल पारे राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एक्चुअली हूँ जी फंडामेंटल राइट्स अच्छी जदि यही रईटा ना जदि देखिए कन्स्टिट्यूशनल जो राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जदि आमको मिलतानी आमर 5टा राइट जब भायोलेट है आम कड़े जा जदि ये रईट ना आम क्या अप्रोच कर पार तेणुक ये हूँ एक्चुअली हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन एटा को आम कहता रिमेडी कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी तेणुक कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अनुसार कौन देखिए आर्टिकल 32 आम तो जानते 31 को रिपील कराई जो राइट टू प्रॉपर्टी था राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कराई ऑलरेडी पढ़ी सारे आर्टिकल 32 कौन कहूँ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स तुम जदि कौन क्षेत्र में तुम जब फंडामेंटल राइट गुड़ाक जब भायोलेट है ताले तुम कौन कर सुप्रीम कोर्ट को तुम्हें अप्रोच कर सुप्रीम कोर्ट कौन कर 5टा रिट कौन कर 5टा रिट तुम मानू जारी करके तुमको तुम तुम मान जो फंडामेंटल राइट भायोलेट सुरक्षा प्रथम हूँ हाबियस कर्पस मंडामस प्रोहिबिशन सेर्चियोरारी और को वारंट मु नेक्स्ट वीडियो रे तुम मानक 5टा रिड्स रो पूरा डिटेल गोटे वीडियो पब्लिश करी बर्तमान वीडियोटा बहुत लेंदी तेणुक आम नेक्स्ट देखा आबे तो बर्तमान पर्यंत आम देखिले आर्टिकल 32 गला 32 गला आमर तो जानते फंडामेंटल राइट गुड़ाक 12 रू 35 आउरी 33 34 35 अच्छे ना देखिए से गुड़ा एक्स्ट्रा राइट्स गुड़ा कौन देखिए आर्टिकल 33 डील करछि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट माने एक्चुअली पार्लियामेंट को पावर मिली सी चाहिए तुम फंडामेंटल राइट गुड़ा को मॉडिफाई कर देखो मॉडिफाई आउ टोटल रिपील अलग जिनस फंडामेंटल राइट गुड़ा को मॉडिफाई कर जदि इन केस जदि किसी प्रोब्लेम है फंडामेंटल राइट गुड़ा जदि करेंट सिचुएशन अनुसार इनवैलिड है से गुड़ा मते रिपील कराए जेमि हमर जोटा कि हमर थला राइट टू प्रॉपर्टी जदि पार्लियामेंट पाखे हमर जदि पावर न था से रिपील कर पारथि नै तेणु राइट टू प्रॉपर्टी पार्लियामेंट को पावर दिया से मॉडिफाई कर पारे से हूँ अंडर आर्टिकल 33 नेक्स्ट आर्टिकल 34 डील्स विथ द मार्शल लॉ अनुसार ये डील कर नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 35 डील्स विथ
legislation required to deal with the fundamental rights. ये जो फंडामेंटल राइट गुड़ा को डील करके ही हम लेजिस्लेशन करबा लॉ गुड़ा को फॉर्म करबा सेटा होची आर्टिकल 35 रे सो कोला राइट्स गुड़ा तो पब्लिश कर देले देइले हम फंडामेंटल राइट एती जाक आर्टिकल नै जो किंतु सेही फंडामेंटल राइट गुड़ा को को प्रोसीजर रे हमें नै कि लॉ गुड़ा फॉर्म करे सेटा होची आर्टिकल 35 रे प्रोसीजर्स लिखा है ठीक है जो फंडामेंटल राइट्स गुड़ा को राइट गुड़ा केवल केवल इंडियन सिटीजन मान अच्छी 15 16 19 29 30 एटा हूँ कौन ए राइट्स गुड़ा केवल केवल इंडियन सिटीजन मान आउटसाइडर मान राइट्स मिल ना नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल राइट्स गुड़ा दोज आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन जो सिटीजन नुहति जदि कौन गोटे कंट्री रिसाइड कर राइट्स गुड़ा से लागू हम नेक्स्ट देखिए so this is the end of our video. If you find this video helpful, kindly subscribe our channel. Thanks for watching. Subscribe to our YouTube channel, Wireless Tutor. Thank you.